नमस्कार दोस्तों, आपका वेदाइस में स्वागत है। एज यू ऑलरेडी नो कि आवर क्लासेज आर रनिंग। दिवाली की वजह से छुट्टी हो गई थी, कल छठ ख़त्म हुआ, आज भी कुछ लोग छठ मान रहे। अब से हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों रेगुलर चालू हो गई है अपने पुराने वाले टाइमिंग पे। हिंदी माध्यम में अथर्वाइएस पे क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश मीडियम में वेदाइएस पे क्लासेस चल रही हैं। We were discussing earlier about the silent feature of the Indian Constitution, and today's topic is we try to end up this particular portion. And today's topic is fundamental rights and fundamental duties. What are fundamental rights and what are fundamental duties? Fundamental rights are given in the third part of Constitution. That means they are given in the third part of Indian Constitution. What are fundamental? These are fundamental rights which has been guaranteed by the Constitution to the citizen of India against the government. That means if you think that your rights are violated, you can directly move towards the court. There are different types of fundamental rights which we'll see. But before understanding the fundamental, what are the different types of fundamental rights, we must look some of the features of the fundamental rights. That is, we have already seen that they are given in the third part of the Indian Constitution, and they guaranteed the citizen of our country some fundamental features or basic rights to every citizen. These rights are fundamental because if it saying that particular rights are fundamental rights, why these rights are fundamental? These rights are fundamental because they are basic to the moral and spiritual development of the individual. They are given for the overall development of the citizen. That means spiritually and for morality also. They have given for the individual only. That's why these are called fundamental in nature, that is basic rights. The idea of fundamental rights has been borrowed from the American Constitution. From where it has been borrowed? It has borrowed from American Constitution. छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग इसको समझते चलो, लिखते चलो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इसको आप लोगों को मेन पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स के पर्पज़ से और मेंस के पर्पज़ से दोनों में इम्पॉर्टेंट आएगा। ठीक, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इफ़ एनी पर्टिकुलर पर्सन it thinks that his or her rights or rights may be violated by a state or a body of a state, that particular individual or individuals may be moved toward the court directly or indirectly. वैसे बेसिकली डायरेक्टली आप जा सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ऑन द फंडामेंटल पे वो क्विक एक्शन भी लेगा।
अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट ईजी. They cannot be amended just like a simple majority because they are guaranteed for the protection of the citizens against the state. These rights are used against the states or any company or any individual if they are violated. If any amendment is going to be made in this particular fundamental rights, द गवर्नमेंट नीड 2/3 मेजॉरिटी. ये सभी जानते हैं आप लोग भाई कैसे बनता है. ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें कि आर्टिकल सभी लोग जानते हैं. आर्टिकल कौन सा होगा अमेंडमेंट में? 368 के अंडर में होगा. ये आर्टिकल है. ठीक, ये सिंपल सी बात है. सिटीजन इसको एंजॉय करते हैं. और अगर देखा जाए तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. टाइप्स ऑफ, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. एक राइट था, 7 थे पहले, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था. दैट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था. इस राइट्स को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया. इसे लीगल राइट बना दिया गया. यानी इस राइट को 44th अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1979 में हुआ था, 78 में हुआ था, 79, इसे हमने एक लीगल राइट बना दिया. बाकी इसकी डिटेलिंग हम फंडामेंटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ. एक हम प्रॉपर्टी, एक हम आप लोग को प्रॉपर्टी राइट के बारे में नॉर्मली बता रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार जो था, इट वॉज removed from fundamental rights and added in the legal right. बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे. वी आर स्टडिंग जस्ट अ साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? वी हैव टू स्टडी राइट. फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज दैट first fundamental right what we study is that right to equality. क्या है? right to equality. इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं. आप लोग इसको इतना समझ ही जाओगे भाई, बचपन से फंडामेंटल राइट पढ़ते ही आ रहे हो. इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. हाँ, लेकिन इसको नए कंसेप्ट इसका समझना ज़रूरी है. जो आपने NCERT जो उसमें पढ़ा है, दे आर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और एक जनरल पर्पस के लिए था, क्योंकि आपको 6, 10 to 12 के एग्ज़ाम पास करने थे. अभी भी UPSC आपको पास करना है, लेकिन उसका थोड़ा वाइड एरिया बढ़ जाता है. एरिया ऑफ स्टडी फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा वाइड हो जाता है. पहले था, आप छोटे में पढ़ते थे. राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक. ठीक, उसके बाद फिर राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम कहाँ से? राइट टू फ्रीडम ये होता है 14 से 18 तक. ये कहाँ से होगा? जस्ट आगे उसी के 19 से 22 तक. ठीक, आर्टिकल राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 12 तक, जैसा कि हमने इसमें बता दिया. इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24. ठीक, आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन.
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 25, आगे 28 तक। ठीक, फिर पांचवा क्या आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। या भाई इतना आ गया, इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आया आर्टिकल नंबर 29 से आर्टिकल नंबर 30। इसको हम कैसे आर्टिकल में कवर करेंगे फंडामेंटल राइट, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जब हम शुरू करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 365 तक, उसको हम आर्टिकल में देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे आर्टिकल हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, फिर छठा फंडामेंटल राइट क्या है, सभी जानते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक, ये क्या आता है, आर्टिकल नंबर 32। ठीक, यही वो है जो कि हमें कोर्ट जाने के लिए परमिट करता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस, फ्रीडम, एक्सप्रेशन, बिलीफ, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी भी तरह का, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक, एजुकेशन, ठीक, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो हमने पढ़ लिया, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जैसा कि हमने टॉपिक में भी लिखा है कि वी विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई राइट्स तो हमने अभी पढ़े, ये हमारे राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं अगेंस्ट द स्टेट। तो उस भाई हमें गवर्नमेंट से अधिकार लेने का हक है, ये हमें संविधान करता है, लेकिन वहीं हमारी कुछ ड्यूटी भी संविधान निर्धारित करता है कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, है ना। इस तरह पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में कि दिस इज़ आवर ड्यूटी, गंदगी ना फैलाइए, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक, तो उसी तरह दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले नहीं थी ये हमारे संविधान में, लेकिन बाद में इसमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम जब फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो देनी चाहिए। ठीक, तो इसको जोड़ा कब गया, मेन चीज़ है, इसको जोड़ा गया 1975। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब जोड़ा गया, 1975 से 77 में। ये जब जुड़ा था उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लगी हुई थी, इंटरनल इमरजेंसी। गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर ड्यूटीज़ लाद दिया, राइट्स तो उसने बैन कर दिए, क्यों, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगा दी, लेकिन आपके अधिकार हमने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन ड्यूटी लगा रहे हैं, ये आपको करना ही करना है। भाई इमरजेंसी थी, कुछ भी हो रहा था। अभी नसबंदी का भी प्रोग्राम उसी समय चला था, ज़बरदस्ती कर देते थे, छोटे छोटे बच्चों की कर देते थे। पॉलिसी बहुत बढ़िया थी, मगर इम्प्लीमेंटेशन उसका गलत हुआ। कई अलग अलग चीज़ें थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1975 में और 77 के बीच में। किस समय, इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। What was the committee, which committee has recommended
फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस कमेटी ने सुझाव दिया कि देयर शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन, और गवर्नमेंट को इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने संविधान में। तभी वो अमेंडमेंट किया गया और इसको जोड़ा गया। ठीक, कमेटी का नाम था यशवंत सिंह कमेटी। क्या था? यशवंत सिंह नहीं, उसको पढ़े, यशवंत सिंह कमेटी अलग थी, इसका नाम नहीं, यशवंत सिंह नहीं था, स्वर्ण सिंह कमेटी था, इसका नाम स्वर्ण सिंह कमेटी था। स्वर्ण सिंह कमेटी, माफ़ कीजिएगा गलती से यशवंत सिंह का नाम आ गया, उनका चेहरा भी दिमाग में आ रहा था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने, स्वर्ण सिंह थे जिस ये इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने इस कमेटी का ये रिकमेंडेशन दिया गया था, दे हैव रिकमेंडेड अबाउट नॉट फंडामेंटल राइट्स, दे हैव रिकमेंडेड अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि देयर शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? अरे भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है वो? फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी का। इसमें लिख लीजिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, ठीक। अब ये दिए कहाँ गए हैं संविधान में, अगर इन्हें जोड़ा गया अमेंडमेंट करके? भाई, फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिए, ठीक। दे हैव बीन एडेड इन द 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका 4th में ही एक पार्ट और बना दिया गया। दे हैव गिवन इन द 4th पार्ट ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसे अमेंडमेंट किया गया, तो भाई बीच में ही जोड़ेंगे, तो पार्ट अलग से। फंडामेंटल राइट के जस्ट बाद इन्होंने सोचा कि एक चौथा पार्ट बनाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाती है, उसके बाद उसी के बाद इन्होंने एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी प्रोविज़न डाल दिया 42nd अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में करके उसको। ठीक, ये ओवरऑल आपका था। बाद में फिर 2002 में इन्होंने 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। 86, इसको लिख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें दे added, they means government added some more fundamental duties। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में, तब हम पढ़ेंगे। आर्टिकल किस में? आर्टिकल 51A में। ये किस में डील करता है? आर्टिकल 51A में। ठीक, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक चैप्टर ही है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। एथिक्स और मॉरलिटी में आपके लिए बहुत काम आएगा कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर गिवन इन पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड वी हैव टू सॉल्व। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। 1975 to 77 में ये दिया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। 4th A पार्ट में इसको जोड़ा गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि हुआ था
2002 में इसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और जोड़ दिया गया। और किस आर्टिकल में कंटेन करता है? इट कंटेन इन आर्टिकल 51A। तो ये इतनी मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थी। तो